हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय अनदर आइल स्पीकिंग क्यू कार्ड्स वीडियो। और आपको बता दूं कि ये लेटेस्ट टॉपिक है जो कि रिसेंटली पूछा गया है। इससे पहले टॉपिक पूछा जा रहा था कि फेवरेट मूवी, लेकिन अभी जो रिसेंट टॉपिक पूछा गया है, डिस्क्राइब अ बोरिंग मूवी दैट यू वॉच्ड। You should say what the film movie was, when you watched it, who you watched it with, and explain why you found it boring. और आपको बता दूं, दो सैंपल आंसर इसमें मैं शेयर करूंगा। सबसे पहला सैंपल आंसर है बैंड 6 और 6.5 के लिए, और उसके बाद अगर आपको 7+ बैंड स्कोर चाहिए तो सेकंड सैंपल आंसर होगा बैंड 7+ के लिए। सो लेट्स बिगिन। I watched many movies in my life, and I have also found several tedious movies. And one of them is A Love Story 2050, which was a very boring movie for a lot of reasons. So I'm going to talk about that movie here. I vividly remember that I watched this movie 2 years back, and I went with my friends to watch this movie in the theater. And I was really excited to watch this movie because everyone was saying that this would be the most entertaining movie. Several means many. Tedious, boring को आप बोल सकते हैं. Tedious, very boring. Okay? I vividly remember, मुझे अच्छे से याद है, I was really excited. मैं बहुत ज़्यादा excited था. However, this was not the case because the acting was not up to the mark. And I did not expect this from this movie. Honestly saying, I was feeling sleepy while watching the movie, but my friends were enjoying it. Usually, I check ratings of the movies before watching or spending my precious time. But this time, I felt that I made a mistake by not checking the rating about the movie. The main reason for watching this movie was my favorite actress was in the movie named Priyanka Chopra. This was not the case. ऐसा नहीं था. राइट, दिस वॉज नॉट द केस। प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं दिस इज नॉट द केस। जैसे अगर मैं कहूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आई एल स्पीकिंग क्यू कार्ड्स मेरे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आपको बता दूं ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द केस। टेक्निक्स चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। दिस इज नॉट द केस। पास्ट में दिस वॉज नॉट द केस, ऐसा नहीं था। नॉट अप टू द मार्क। अगर कोई चीज़ नॉट अप टू द मार्क है, दैट मीन्स कि वो उतनी अच्छी नहीं थी जितना होना चाहिए। ऑनेस्टली सेइंग, ईमानदार के साथ मैं कहूँगा, स्लीपी जब आपको नींद आती है और आप कहते हैं कि my god, I'm feeling sleepy now. Anyways, I'm not. Okay, sleepy जब आपको नींद आ रही होती है, यूजुअली आमतौर पर प्रेशियस टाइम, बहुत ही कीमती समय, हर किसी का समय बहुत कीमती है, प्रेशियस टाइम। द मेन रीजन फॉर, कि मेन कारण ये था, okay, but she did not perform as she does in her movies. So I was a bit upset after watching this movie. We all were repenting that we wasted our time because we were extremely bored. One of my friends also did a movie review on his Instagram page, and we all commented there too. Although actors might have tried their best, however, being an audience, I cannot say that I liked this movie because the story and acting were not good enough for us. A bit upset, कि थोड़ा सा मैं परेशान हुई मूवी देखकर। रिपेंटिंग मीन्स जब आपको पछतावा हो, जैसे अगर आप कहें कि आपने प्रॉपर तैयारी नहीं की आइल्स एग्जाम के लिए और अभी आप रिपेंट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, राइट। एक्सट्रीमली बोर्ड, वेरी वेरी बोर्ड। ओके, मूवी रिव्यू, कि जब आप मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी अच्छी थी, बुरी थी, कैसी थी, राइट। माइट हैव ट्राइड, शायद उन्होंने ट्राई किया होगा। बीइंग एन ऑडियंस के तौर पर गुड इनफ, कि उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। सो नाउ लेट्स गो फॉर बैंड 7+ सैंपल आंसर। It was quite tricky to decide what to talk about because I wouldn't describe myself as a cinephile. This explains why I was struggling, but then suddenly a monotonous movie sprang to mind. And there was a Hindi movie named Love Story 2050. And I'm gonna be talking about this movie for 2 minutes. I vaguely remember that I went with a group of close friends to watch this movie in the cinema. One of the major reasons that why I went was everyone was raving about the love story. So that made me go and watch it. It was quite tricky to decide what to talk about. 7+ बैंड स्कोर लेने के लिए आपको बता दूं कि आप स्टार्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि सर जब आपने मुझे 1 मिनट दिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि किस चीज़ की यहाँ पर मैं बात करूं, बिकॉज आई वुडंट डिस्क्राइब, वुड नॉट की कंट्रैक्शन है,
वुडंट, कि मैं अपने आप को डिस्क्राइब नहीं करूंगा कि मैं सिनेफाइल हूं। सिनेफाइल उसको बोलते हैं जिसको सिनेमा जाना बहुत ज़्यादा पसंद हो। सिनेमा गोअर भी आप इसको बोल सकते हैं, सिनेफाइल। टेल मी इन द कमेंट्स दैट आर यू अ सिनेफाइल, क्या आप सिनेफाइल हैं? Alright, a monotonous movie, बहुत ज़्यादा बोरिंग मूवी, a monotonous, right? Monotone मतलब एक ही सिंगल टोन, like that, एक ही सिंगल टोन, monotonous movie, monotonous speaking, right? Sometimes कुछ students इस तरीके से बोलते हैं, and after this I went there and I enjoyed a lot because like, so that's monotonous, okay? Monotonous speaking. Okay, so sprang to mind means came to mind, एकदम से मेरे दिमाग में आया sprang to mind. I'm going to be talking about, जब आप going to be के बाद ing यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो चीज अब आप लगातार करने वाले हैं। जैसे अगर आप कहें कि I'm going to be studying for next 2 hours, right? That means कि लगातार मैं 2 घंटे पढ़ने वाला हूं। I'm going to be, okay? जैसे अगर आप कहेंगे कि सर फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देख रहा हूं, so now I'm going to be watching your all videos, अभी मैं आपका हर वीडियो देखने वाली हूं, right? दिस मूवी फॉर 2 मिनट्स, ये मैं फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहा हूं कि यहां पर जानबूझकर, हालांकि आपको बता दूं कि एग्जामिनर आपको 2 मिनट से पहले ही आपको रोक देगा। अगर मैं अपना गेस बात करूं कि 1 मिनट 45 या फिर 40 सेकेंड्स फॉर 2 मिनट्स, राइट? नहीं बोलने देगा वो आपको, लेकिन मैं जानबूझकर यहां पर यूज कर रहा हूं एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि मुझे 7+ बैंड स्कोर चाहिए ही चाहिए। I vaguely remember. When you say you vaguely remember, that means कि आपको हल्का सा याद है। पंजाबी च कहते हैं धुंधला जा याद है, मतलब चंगी तरह याद नहीं। I vaguely remember. कॉमर्स में ज़रूर कुछ ऐसा ज़रूर एग्जाम्पल मेंशन करें जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। I vaguely remember, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे हल्का सा याद है, मतलब हल्का हल्का याद आ रहा है कि सर पहली बार थोड़ी वीडियो देखी थी मैं। I vaguely remember. Any example? Please tell me in the comments. Okay. A group of close friends. A group of कि बहुत close friends का group. Okay. One of the major reasons that why, जैसे आप comment में लिख सकते हैं कि one of the major reasons that why I watch your videos, because your videos are amazing. Everyone was raving about. Raving about means हर कोई बोल रहा था कि क्या मूवी है, मैंने ट्रेलर देखा है, बहुत ज़बरदस्त मूवी होगी। Raving about. Okay. Made me go, मुझे मजबूर किया जाने के लिए। As the question asks me, when did I watch it? Well, I'm not entirely sure, because truth be told, I'm a bit absent-minded. But I guess it was several years ago. So the film started, and to be brutally honest, I was not gripped by the starting. And I already started being obtuse. Don't get me wrong, the movie wasn't terrible for my friends. Mind you, for me, it was mind-numbingly boring, and I was nodding off. As the question asks me, when did I watch? When did I watch? इसको बोलते हैं rhetorical question. Rhetorical question होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन देखा क्यू कार्ड के, आपने देखा होगा कि क्यू कार्ड में नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनको बुलेट पॉइंट्स भी आप बोल सकते हैं। और ये आप मेंशन कर रहे हैं कि जैसा कि इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है, when did I watch it? कब मैंने ये देखा इसे, राइट? बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। 7 बैंड स्कोर के लिए आपको करना ही करना होगा 7.5, खास तौर पर अगर आप जीटी के कैंडिडेट हैं। Alright, I'm not entirely sure, कि मुझे याद नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ कि ट्रुथ बी टोल्ड, सच तो बताना होगा। कमेंट्स में ज़रूर लिखें ट्रुथ बी टोल्ड, सर सच तो बोलना होगा कि आपकी वीडियोस बहुत अमेजिंग होती हैं। ट्रुथ बी टोल्ड, I'm a bit absent-minded. If you are a bit absent-minded, that means कि आप जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। पंजाबी कहते हैं पुलक्कड़। Absent-minded. Are you absent-minded? Okay. To be brutally honest. देखिए, एक बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया है फ्रेज़ अपनी वीडियोस के अंदर, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, और यहाँ पर है ब्रूटली ऑनेस्ट। टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट का मतलब है चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ। जैसे आप हो सकता है कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन आपको पसंद ना हो, आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक ABC पॉलिटिशियन। Tell me in the comments, to be brutally honest, कि कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो आपको पसंद नहीं है। To be brutally honest, कमेंट्स में जब आप लिखते हैं, सो दैट मीन्स दैट गिव्स मी एक्चुअली कॉन्फिडेंस, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कमेंट्स में देखता हूं कि आप सेंटेंसेस और वो वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज मुझे वीडियो नहीं बनाना है, मुझे सिखाना है। I was not gripped by the starting. I was not gripped by. That means कि वो पकड़ नहीं बन पाई, कि मैं अट्रैक्ट नहीं हो पाया। I was not gripped by. जैसे हो सकता है कि बैंड 6 का सैम्पल आंसर आपको पसंद ना आया हो, आपने देखा हो, जो इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है, and you say, sir, I was not gripped by the first sample answer.
I was not, okay? Right, obtuse. Obtuse मतलब जब आप कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं समझने की, you say that नहीं नहीं नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे समझना ही नहीं है, नहीं क्या यार, ये नहीं, मुझे देखना ही नहीं है. So that means that you are obtuse. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, समझना चाहते ही नहीं है, चाहे कितना अच्छा उनको बताने की कोशिश करो. They are obtuse. Obtuse. Don't get me wrong. सर मुझे गलत मत समझना. Wasn't terrible, right? Wasn't terrible means इतना भी बुरा नहीं था मेरे फ्रेंड्स के लिए. Mind you डिस्कोर्स मार कर है, बट की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो. जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बोलना कि सर बहुत कोशिश करता हूँ अपने बैंड स्कोर को इंप्रूव करने के लिए. माइंड यू हो नहीं रहा है. माइंड यू मतलब दिमाग में ये भी रखना, बट ओके. और आपको बता दूं कि इस तरीके के और अगर आप 7+ बैंड स्कोर सैंपल आंसर चाहते हैं, उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके, अरुण आइल्स क्लासेस. अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, अगर iOS यूज़र हैं, आपके पास आईफोन है तो क्लास प्लस डाउनलोड करें, JZQVW. उसमें मेरा एक कोर्स है, अरुण स्पीकिंग कोर्स, जिसमें इस तरीके के आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मोर देन 80 वीडियोस, जिसमें क्यू कार्ड्स, पार्ट 3 फॉलोअप क्वेश्चंस और पार्ट 1 के जितने भी लेटेस्ट टॉपिक्स हैं सभी उसमें मैं ऐड करता रहता हूं, और बहुत सारे मैंने ऐड ऑलरेडी कर दिए हैं. प्लीज गो एंड चेक इट आउट, और आप अरुण स्पीकिंग कोर्स बाय कर सकते हैं. ओके. माइंड नमिंगली बोरिंग मीन्स बहुत ज़्यादा बोरिंग. नोडिंग ऑफ जब आप अपनी गर्दन को पीछे इस तरीके से करके आप बोलते हैं कि ओह माय गॉड, कहाँ फंस गया मैं यार, क्या चीज़ है, इतनी बोरिंग चीज़. नोडिंग ऑफ, राइट? Now, you shouldn't be surprised that I was watching the clock throughout the movie, because the movie plot was not up to the mark or my expectations, and I'd have to say that I was bored to death while being there in the theater. The story and acting were incredibly mediocre, and I had fallen asleep many times during the movie, honestly saying. I think I'm right in saying that it was an absolute nightmare experience to watch this movie. You shouldn't be surprised कि आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए. यहाँ मैं जानबूझकर एग्जामिनर को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर सरप्राइज नहीं होना चाहिए आपको. क्यों मैं वॉचिंग द क्लॉक थ्रू आउट द मूवी, कि मैं क्लॉक को देख रहा था. ये इडियम है, बता दूं आपको, इडियम्स बहुत ज़रूरी हैं. LR में बैंड स्कोर आपको अगर अच्छा चाहिए, 7+ बैंड स्कोर चाहिए, तो लैंग्वेज होनी चाहिए. जैसे कि एक सब्जी में कहते हैं ना, मटर पनीर की सब्जी ਵਿੱਚ पनीर ही पनीर. सो वॉचिंग द क्लॉक थ्रू आउट द मूवी, ओके. जैसे हो सकता है कि कहीं आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं और आप बार बार टाइम देख रहे हैं कि कब ये क्लास ख़त्म हो, कब ये यहाँ से ये सत्संग ख़त्म हो, कब ये यहाँ से मैं निकलूँ यहाँ से. वॉच द क्लॉक थ्रू आउट ABC थिंग, ओके. मूवी प्लॉट बोलते हैं कि जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो क्लाइमैक्स है, वॉज नॉट अप टू द मार्क, राइट? कि इतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए. आई हैव टू से दैट, मुझे कहना होगा आई वॉज बोर्ड टू डेथ का मतलब है कि जब आप कहें कि हे भगवान मेरी तो जान निकल रही है, इतना ज़्यादा मैं बोर हो चुका हूँ. बोर्ड टू डेथ, ओके. इनक्रेडिबली मीन्स वेरी. मीडियोकर की उस लेवल पे नहीं थी जिस लेवल पे होना चाहिए. मीडियोकर मतलब उस अच्छी क्वालिटी नहीं थी, नॉर्मल था, राइट? इतना अच्छा नहीं था. आई हैड फॉलन अस्लीप, कि मुझे नींद आ गई थी, राइट? आई थिंक आई एम राइट इन सेइंग दैट. मुझे लगता है मैं ठीक कह रहा हूँ. जैसे अगर आप कहें कि आई थिंक आई एम राइट इन सेइंग दैट, सर आपकी वीडियोस देख के मुझे लगता है मेरे 7 बैंड स्कोर आ ही जाएंगे. आई थिंक आई एम राइट इन सेइंग दैट. एब्सोल्यूट नाइटमेयर एक्सपीरियंस. दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस, राइट? बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस. Absolute nightmare experience. I found watching this movie was a waste of time for me. Oh, I nearly forgot to mention that I did share my review with other allies who were supposed to watch this movie, since it was exceedingly boring and I didn't want my mates to waste their money as well as valuable time. A waste of time, that means कि टाइम को वेस्ट करना. आई नियरली फॉरगॉट टू मेंशन दैट. काफ़ी बार मैंने अपनी वीडियोस में ये लाइन यूज़ की है. इसका मतलब ये है कि मैं ये चीज़ मेंशन करना भूल गया था या भूल गई थी. और आई नियरली फॉरगॉट टू मेंशन दैट. अलाइज फ्रेंड्स की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं. सपोज टू वॉच, ओके, कि वो जो देखने वाले थे, सपोज टू वॉच. एक्सीडिंगली मीन्स वेरी. एक्सीडिंगली बोरिंग, जानबूझकर मैंने सिंपल वर्ड यूज किया, लेकिन एक्सीडिंगली जब इसके साथ एडवर्ब यूज करते हैं, सो देन इट बिकम्स मोर इंप्रेसिव. एक्सीडिंगली बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग. जैसे आपको बोल रहा हूँ कि आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है. एक्सीडिंगली यूजफुल, राइट? अगर आप ऑफलाइन आइल्स क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सो आप मंडी डबल में ज्वाइन कर सकते हैं. अरुण आइल्स क्लासेस बिहाइंड दर्पण सिनेमा, स्वीट अरुण आइल्स क्लासेस. अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, सो देन माय व्हाट्सएप नंबर इज ऑन द स्क्रीन. वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.